Good morning, students. Today we are going to see the last part, means the last story of our writer's life, which he want to tell us. Before this, he told us the two stories. One story is related to his Reed College when he dropped out from that college, and that moment which turned his life, which gave a turning point to his life. He told the story about that dropout. Then he told us the story about the second story of his life, about love and loss, about his wife, and how he lost his job in the Apple company. But when he lost his job in the Apple company, he forgot, and then he started a new work. When he started his new work, then again he went back to the Apple, and there they started Oz, and he started a new current renaissance of Apple. Then he told us that sometimes life hits us in the head with a brick, means suddenly some unexpected things happened in our life, and we will not prepare for that. So at that time the writer told us, don't lose faith. The only way to do great work is to love what you do. Means he want to tell us that if you want to do some great work, then you start to love that work. Don't stop doing that work. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. And he also want to tell us that if you don't find that work, means which work we want to do, what we want to be in our life, then he told us, don't settle till you find what to do in your life. Now he is going to tell us the third story of his life, and his third story is about death. My third story is about death. About a year ago, I was diagnosed with cancer. My doctor advised me to go home and get my affairs in order. What is doctor's code for prepare to die? I live with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy. It turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I am fine now. और यहाँ पर राइटर हमें अपने लाइफ की तीसरी स्टोरी बताते हैं। उस स्टोरी में वो बताते हैं कि जब उन्होंने एप्पल का रिनेसेंस किया, उसके बाद में उनके लाइफ में सडनली कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी शॉकिंग बात हुई जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अपने ऊपर का जो भरोसा है, उस भरोसे की वजह से उन्होंने उस सिचुएशन को भी ओवर किया। यहाँ पर वो बताते हैं कि 1 साल के बाद में फिर उन्हें डायग्नोस किया गया। जब उनको चेक किया गया, तब उनको एक कैंसर जो होती है बीमारी, कैंसर की बीमारी उनको निकली। उनके डॉक्टर ने उनको एडवाइस दिया कि अब आप घर पे जाओ और अपने जो अफेयर्स है, यानी कि जो आपका कामकाज है या आपके लाइफ के जो कुछ भी काम बाकी है वो पूरे कर लो। एक तरफ से ये डॉक्टर के लैंग्वेज में ऐसा कोड था कि आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी आपको कैंसर हो गया, यानी आपकी लाइफ अभी ख़त्म होने वाली है। यानी कि आपकी लाइफ में अभी जो कुछ भी काम आपको करने हैं वो काम आप पूरे कर लो। और इस डायग्नोसिस के साथ पूरे दिन भर राइटर वैसे ही रहे, बार बार वही सोच रहे थे, वही टेंशन उन्हें वहाँ पर आ रहा था कि मुझे कैंसर की बीमारी है और डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला है। लेकिन फिर उसी
इवनिंग में उनकी बायोप्सी थी। बायोप्सी मीन्स एक तरह की टेस्ट होती है, और जब ये बायोप्सी उनकी की गई तब उन्हें पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है। पैनक्रियाटिक कैंसर जो है बहुत ही रेयर ऐसा फॉर्म है कैंसर का, बहुत ही कम लोगों को ये होता है, लेकिन अगर इसकी सर्जरी की जाए, पैनक्रियाटिक कैंसर की अगर सर्जरी की जाए तो वो क्यूरेबल है, मीन्स वो ठीक हो सकता है। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ। और इस तरीके से फिर राइटर ने पैनक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी की और उसके बाद में वो ठीक हो गए। This was the closest I have been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. यहाँ पर राइटर हमें बताते हैं कि जब मुझे कैंसर हुआ, ये बात मुझे पता चली, तो उस वक्त मैं डेथ को बहुत ही क्लोज फेस कर रहा था। डेथ जो है मेरे बहुत नज़दीक आ चुकी थी और मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि शायद मैं बच जाऊंगा। लेकिन मेरी वो बीमारी, मेरा वो कैंसर ठीक हुआ सर्जरी के बाद में, और उससे बहुत साल बाद, बहुत डिकेड्स मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो उससे बहुत सालों तक उसके बाद में मैं ज़िंदा रहा। और ये सब जो है वो सिर्फ मेरी होप की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी जो आशा है, जो होप है, वो नहीं छोड़ी थी। हैविंग लिव्ड थ्रू इट आई कैन नाउ से दिस टू यू। और जब कि मैंने अपनी इस कैंसर की इस बीमारी से जबकि मैं बाहर निकल चुका हूँ, तो उसके बाद में यानी मौत को बहुत क्लोज से देखने के बाद, डेथ को बहुत क्लोज देखने के बाद में जो कुछ भी एक्सपीरियंस मैंने किया है, एक नई ज़िंदगी मैंने हासिल की है, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। आपकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत लिमिटेड है। हमको नहीं पता होता कि हमारी लाइफ कितनी है, किसी को पता नहीं होता। वैसे आपकी लाइफ टाइम जो है वो लिमिटेड है, और इसीलिए अपनी लाइफ को जीने के लिए दूसरों के हिसाब से मत जियो। अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से जीकर वेस्ट मत करो। ये जो टाइम आपको यहाँ पर मिला है बहुत कम है, लिमिटेड है, और इसीलिए अपनी लाइफ को दूसरों के हिसाब से जीकर अपने उस टाइम को वेस्ट मत करो। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. उसके बाद में राइटर हमें कहते हैं, डॉगमा मीन्स जो लोग, बहुत सारे लोग कुछ बातें करते हैं यानी कुछ फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम भी उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो राइटर हमें यहाँ पे करते हैं कि आप उस ट्रैप में, उस जाले में मत फंसो कि लोग कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी वही करना चाहिए। ये आप मत सोचो, ऐसे ट्रैप में आप मत फंसो। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम दूसरों के हिसाब से जीते हैं। अगर हम ऐसे ट्रैप में फंस गए तो हम दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्रॉन आउट योर ओन इनर वॉइस। आपकी जो इनर वॉइस है यानी आपके मन की जो आवाज़ है, या आप अपने मन से जो कुछ भी करना चाहते हैं, उस चाहत को, आपकी उस इनर वॉइस को दूसरों के ओपिनियंस का जो बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, दूसरों के ओपिनियंस का जो बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, या बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप अपनी इनर वॉइस सुनो। आपकी इनर वॉइस को, आप अपनी चाहत को, अपने लाइफ के गोल को दूसरों के हिसाब से मत करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि हमारे मन में करेज होना चाहिए, हमारे मन में साहस होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। हमारी जो मन हमें क्या बोलता है, हमारा हार्ट हमें क्या बोलता है, ये हमें पता होना चाहिए। दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। क्योंकि आपका जो मन है वही आपका मन आपको सच में क्या करना है, आपको अपने लाइफ में क्या करना है, ये सच में सिर्फ आपके मन को ही पता होता है। When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog.
उन्होंने कहा है कि जब मैं यंग था तो उस दिनों में एक अमेजिंग ऐसा पब्लिकेशन था और उस पब्लिकेशन का नाम द होल अर्थ कैटलॉग था। इन द फाइनल इश्यू ऑन द बैक कवर दे पुट अ फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। और ये जो पब्लिकेशन था द होल अर्थ कैटलॉग, उनके फाइनल इशू में वो जो पब्लिकेशन था उनके फाइनल इशू में उनकी जो बुक वगैरह थी उनके कवर पेज पे उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ लगाया था। वो फोटोग्राफ अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड, कंट्री मीन्स गांव वगैरह जो होते हैं, विलेजेस होते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम पे उस गांव में का रोड किस तरीके से दिखता है, कैसा होता है, उसकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर उन्होंने लगाई थी। बीनीथ इट वेयर द वर्ड्स स्टे हंग्री स्टे फुलिश। It was their farewell message as they signed off. I have always wished that for myself, and now, as you graduate to begin anew, I wish that for you, stay hungry, stay foolish. फिर उन्होंने कहा कि ये जो फोटोग्राफ थी उस फोटोग्राफ के नीचे कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए थे। वर्ड्स थे स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि हंग्री मीन्स भूखे रहो और फुलिश मीन्स बेवकूफ़। तो यहाँ पर हमें भूखे रहने के लिए कहा है और फुलिश रहने के लिए कहा है। लेकिन हमें भूख किस चीज़ की रखनी है? कुछ भी नया सीखने के लिए हमें भूख रखनी है कि हमें बहुत कुछ सीखना है, इसलिए हमें भूखे रहना है नई नई चीज़ें सीखने के लिए। और बेवकूफ़ भी बन के रहना है, जैसे कि हमें कुछ पता नहीं है, जो कुछ भी हमारे लाइफ में हमें मिल रहा है वो नया है, हमें पता नहीं है, ऐसा समझ के हमें उसे अडॉप्ट करना है। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ। और ये उनका फेयरवेल मैसेज था जो उन्होंने लोगों के लिए दिया था। आई हैव ऑलवेज विश दैट फॉर माई सेल्फ। हमेशा मैंने अपने लाइफ में अपने आप को वैसे बनाए रखने की कोशिश की है। And now, as you graduate to begin new, I wish that for you, stay hungry, stay foolish. और जैसे कि आप अभी अपनी 10th SSC पूरी कर रहे हो, आपकी नई लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपके लिए भी वैसा ही विश करता हूँ कि आप भी हमेशा हंग्री रहो, आप भी हमेशा फुलिश बने रहो।